Hello everyone, online class 10th, subject science, chapter 16, sustainable management of natural resources, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, living in harmony with nature is not new to us. Sustainable living has always been an integral part of India's tradition of cultures. It has been integrated with our long-lasting traditions and particles, customs, art and crafts, festivals, food, belief, rituals, and folklore ingrained within us is the philosophy that entire natural world we in harmony, which is reflected in the famous phrase in Sanskrit Vasudeva Kutumbakam, that means the entire earth is only one family. The phrase is mentioned in Maha-Upanishad, that is probably a part of the ancient India text अथर्ववेद। प्राकृतिक के साथ सद्भाव में रहने हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला व शिल्प, त्यौहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वासुदेव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ यह है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। In class 9th we have already learnt about some natural resources like soil, air and water, and how various components are cycled over and over again in nature. Also we learnt in the previous chapter about the pollution of these resources because of some of our activities. In this chapter we shall look at some of our resources and how we are using them. Maybe we should also think about how to be using our resources so as to sustain them and conserve our environment. We shall be looking at our natural resources like forests, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development, along with the input from our traditional practices. कक्षा 9th में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु एवं जल के बारे में पढ़ा। तब यहाँ भी जानना कि विभिन्न संगठकों का प्राकृतिक में बार बार चक्रण किस प्रकार से होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा कि हमारे क्रियाकलापों में इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार इनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। हम वन्य जीवन, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। We often hear or read about environmental problems. These are often global level problems and we feel helpless to bring
any change. There are international law and regulation, and then there are our own national law and acts for environmental protection. There are also national and international organizations working towards protecting our environment. हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं तथा इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन हैं तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। Awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society, and once this awareness reaches, some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project come about in 1985 because the quality of the water in the Ganga was very poor. Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contaminations by disease-causing microorganism. संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन निःशेषण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। 16.1 कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल की इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का प्रदूषित होना दर्शाता है। As you can see, there are some measurable factors which are used to quantify pollutions or the quality of the water that we use for various activities. Some of the pollutants are harmful even when present in very small quantities, and we require sophisticated equipment to measure them. But as we learned in chapter 2, the pH of water is something that can easily be checked using universal indicators. जैसा कि आप देखते हैं कि मापन योग्य कुछ कारकों के प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अतिलंब मात्रा में होते हुए भी हानिकारक हो जा सकते हैं। इनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपसंकरों का आवश्यकता होती है, परंतु अध्याय 2 में हम ये पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से सार्व सूचक की सहायता से मापा जा सकता है। वी नीड नॉट फील पावरलेस और overwhelmed by the scale of the problem because there are many things we can do to make a difference. You must have come across the 5 steps to save the environment: refuse, reduce, reuse, reprocess and recycle. What do they refer to? अब परंतु इस समस्या का विशाल रूप को देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम एक स्थिति का अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में अवश्य सुना होगा। रिफ्यूज इंकार, रिड्यूज कम उपयोग, रियूज पुनः उपयोग, रिपर्पोज पुनः प्रयोजन और रिसाइकल पुनः चक्रण। ये क्या बताते हैं? अब रिफ्यूज इंकार, this means to say no to things people offer you that you don't need. Refuse to buy product
that can harm you and the environment. Say no to single use plastic carry bag. इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं को आपकी आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार करें। रिड्यूस, कम उपयोग। दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी light and fan. You save water by repairing leaky tap. Do not waste food. Can you think of other things that you can reduce the uses of? कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं पंख के स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करा के जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिसका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए? रीयूज, पुनः उपयोग। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर than recycling because the process of recycling uses some energy. In the reuse strategy, you simply use things again and again. Instead of throwing away used envelope, you can reverse it and use to again. The plastic bottles in which you buy various food items like jam or pickle can be used for storing things in the kitchen. What other items can be used? यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनः चक्रण से कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग में तरीके आप किसी भी वस्तु के बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उसका उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर के वस्तुओं में रखने के लिए किया जा सकता है। अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं? रीपर्पोज, दिस पुनः प्रयोजन। दिस मीन्स when a product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. For example, cricket, crockery or cups with broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels for birds. अब हम करते क्या हैं? इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु किसी उपयोग के लिए बनी है, जब इस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे उगाना। रिसाइकल, पुनः चक्रण। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स एंड रिसाइकल देज materials to make required thing instead of synthesis or scrapping fresh plastic, paper, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate our wastes so that the material that can be recycled is not dumped along with other wastes. Does your village, town, city have a mechanism in place for recycling these materials? इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातुओं की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक न हो। इसका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इसके पुनर्चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना चाहिए जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूषित कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाए। क्या आपके गांव, कस्बे अथवा नगर में कोई ऐसा प्रबंध है जिसमें इन पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सके? Even while making everyday choice, we can make environment friendly decisions. For doing this,
We need to know more about how our choices affect the environment. These effect might be immediate or long-term or long-ranging. The concept of sustainable development encourages forms of growth that meet current basic human needs while preserving the sources for the need of future generations. Economic development is linked to environmental conservation. Thus, sustainable development implies a change in all aspects of life. It depended upon the willingness of the people to change their perceptions of the socio-economy and environmental conditions around them, and the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. यही नहीं, आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों का निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधित निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हम ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तत्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित भी तो करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों के संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम अपने चारों ओर ये आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। Why do we need to manage our resources? हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता होती है? Not just road and building, but all the things we use or consume: food, clothes, books, toys, furniture, tools, and vehicles are obtained from resources on this earth. The only things we get from outside is energy which we receive from the sun. Even this energy is processed by living organisms and various physical and chemical process on the earth before we make use of it. केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं, परंतु ये सारी वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार और वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं। हम केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होते हुए है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही प्राप्त होती है। Why do we need to use our resources carefully? Because they are not unlimited, and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in healthcare, the demand for all resources is increasing at an exponential rate. The management of natural resources requires a long-term perspective so that they will last for the generations to come and will not merely be exploited to the hilt for short-term gain. This management should also ensure equitable distribution of resources so that all, and not just a handful of rich and powerful people, benefit from the development of these resources.
हमें अपने संसाधनों की कहानीपूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, ये अगली कड़ी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ है उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इसका वितरण सभी वर्गों के समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों के इनको लाभ मिल सके। Another factor to be considered will be exploit these natural resources is not the damage we cause to the environment. Will these resources are either extracted or used, for example, mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for every ton of metal is created. Hence, sustainable natural resources management demand that we plan for the safe disposal of this wastage too. एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन में से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु से निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। The present day global concern for sustainable development and conservation of natural resources are of recent origin as compared to the long traditions and cultures of nature conservation in our country. Principles of conservation and sustainable management were well established in the prehistoric India. संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की है। पूर्व ऐतिहासिक भारत की प्राकृतिक संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता आपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई है। Our ancient literature is full of such examples where values and sensitivity of humans towards nature and was glorified and the principle of sustainability was established at its best. हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई है। During the Vedic period, both protective as well as protective aspects of forest vegetation were emphasized. Agriculture emerged as a dominated economic activity during the later Vedic period. This was the time when the concept of the cultural landscape, which such as sacred forest and groves, sacred corridors, and a variety of ethnoforestry practices were evolved that continued to the post-Vedic period. Beside a wide range of ethnoforestry practices were infused with the traditions, customs, and rituals and flowed as a means for protection of nature and natural resources. वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादक के साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया। वैदिक काल के अंत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। यह वह समय था कि जब पवित्र जंगलों व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार के जाति वानिकी प्रथाओं जैसी संस्कृत परिदृश्य की अवधारणाएं विकसित हुई है, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रही। साथ ही
व्यापक श्रेणी की जाति वर्ण की प्रथाओं को परंपराओं, प्रथाओं व अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती रही। थैंक यू।